ओके, एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4। क्या कर रहे हैं हम लोग? आईएफआरएस। क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें पास होना है, बराबर, एग्जाम में, बराबर। देखो, लास्ट मिनट तक मत रुका करो। आईएफआरएस बहुत लंबा है और वीडियोस भी अपने बहुत सारे हैं, छोटे छोटे लेकिन अच्छे अच्छे, बड़े बड़े हैं, अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े नहीं है, छोटे। ये वीडियो गिने चुने कुछ ही वीडियोस बहुत बड़े बने हैं क्योंकि वो टॉपिक भी बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 10। Today we are dealing with chapter 12, that is Indian Accounting Standard for what? Income tax। ठीक है, तो लेजर पॉइंट ले लेते हैं। क्या इनकम टैक्स सुना है कभी? हाँ सुना है। इनकम टैक्स मेरे प्रॉफिट को बढ़ाता है या कम करता है? हाँ कम करता है, बराबर। क्या एडवांस टैक्स सुना है? हाँ सुना है। एडवांस टैक्स मेरा असेट है या लायबिलिटी है? सर असेट है, बराबर। अच्छा, और आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, बराबर। यस। डेफर्ड टैक्स सुना? हाँ सुना है। ये या तो लेना बाकी है या तो देना बाकी है, करेक्ट। प्रोविजन फॉर टैक्स सुना है? हाँ सर सुना है। कहाँ जाता है? लायबिलिटी साइड पे। अगर पे कर दिया टैक्स तो कहाँ गया? सर पीएनएल में गया, है ना। तो ये चीजें आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपके देश में कितना टैक्स गया, बाहर कितना टैक्स गया, वो आपको बताना चाहिए या नहीं बताना, या कितना आने वाला है, कितना देना बाकी है, ये सब बताना चाहिए। यस। So this particular unit will be dealing with all the aspects relating to the tax, and that to what? Income tax, correct. So the objective of this standard is to prescribe accounting treatment for income tax. The problem is how to account for current and future tax consequences of future recovery of the carrying amount of the assets that are recognized in the balance sheet, transactions and the other events of the current period that are recognized in financial statements. Income tax should be accounted in the period in which corresponding value of the expenses are accounted. Tax expenses shall be accounted for accrual basis. Okay. Scope. This standard is applicable for what? For accounting income taxes. Income tax include domestic and foreign tax bases on taxable profit. It includes what? Domestic tax on taxable profit, foreign tax based on taxable profit, withholding tax payable by subsidiary, associates or joint venture on distribution to the reporting entity. Okay. Definition. अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी कौन से? जिसके ऊपर आपको टैक्स लगने वाला है। इट इज अ प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंसेस, बराबर है। टैक्स निकालने के पहले जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल प्रॉफिट, जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है, करेक्ट। इट इज द प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइंड बाय टैक्सेशन अथॉरिटी ऑन विच इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल, राइट। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आपने किया हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरीज आपने किया हुआ है। जो बिजनेस के नहीं थे वो खर्चे हम लोग ने क्या कर दिए? ऐड। जो बिजनेस के नहीं थे वो इनकम हमने क्या कर दी थी? लेस। तब हमें मिला था नेट टैक्सेबल प्रॉफिट, करेक्ट। Tax expenses, it is the aggregate amount included in the profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax, it is the amount of tax payable in respect of taxable profit of the period, correct. Deferred tax liability, it is the amount of income tax payable in future in respect of taxable temporary difference. हाँ, जो बीच का डिफरेंस है, प्रोविजन इतना था, पेड इतना है, तो पेएबल इतना है। It arises when the tax relief is provided in advance of an accounting expense or income accrued but not taxes until revise. Okay. Deferred tax asset, ये क्या है? जो टैक्स लेना है सरकार से। It is the amount of tax recoverable in future in respect of deductible temporary difference, carry forward for unused tax losses, carry forward for unused tax credit. Okay. Deferred tax asset or liability arises if recovery or settlement of assets and liabilities affect the future tax payment. Tax base, it is a taxable amount. It is the amount attributable to the asset or liability for tax purpose. टेम्पररी डिफरेंस, ठीक है, पेड है और प्रोवाइडेड है, उसके बीच का जो डिफरेंस है असेट और लायबिलिटी के बीच का, वो इट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट और लायबिलिटी in the statement of financial position and its tax basis. टेम्पररी डिफरेंस, वापस क्या, ये कुछ गड़बड़ हुई है उससे आया हुआ है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट, ओके,
ऑफ द असेट और लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट एंड इट्स टैक्स बेस। वापस वही चीज रिपीट हुई है, देयर वाज सम मिस्टेक। ओके, तो टेम्पररी डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस एंड डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। ओके, तो ये दो अलग अलग वर्ड थे, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस एंड डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। ठीक है, आगे की बोल छे टैक्स बेस। तो टैक्स बेस क्या है? जिसके ऊपर टैक्स लागू होने वाला है। द टैक्स बेस ऑफ एन असेट इज द अमाउंट दैट विल बी डिडक्टेबल फॉर द पर्पस, फॉर द टैक्स पर्पस। एक मिनट, माइक आज शायद स्लो आवाज आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट आई होप यू आर ऑडिबल। चार्ज किया फिर भी स्लो आ रहा है और चालू भी है। अगेंस्ट एन एनी टैक्सेबल इनकम बेनिफिट दैट विल फ्लो when it recovers the carrying amount of asset. If the economic benefits are not taxable, the tax base of the asset is equal to the carrying amount. Okay, तो देखो टैक्स बेस, टैक्सेबल इकोनॉमिक बेनिफिट, अमाउंट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस, नॉन टैक्सेबल इकोनॉमिक बेनिफिट इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। ओके, सो टैक्स बेस ऑफ असेट इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट प्लस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट। तो ये फॉर्मूला याद रखना, सम सॉल्व करने के लिए काम आएगा। बराबर, cost of machine is rupees 1000 for tax purpose, depreciation is rupees 300 has already been deducted in the current and prior period, and remaining costs will be deductible in future period either as depreciation or through a deduction on disposal. Revenue generated by use of the machine is taxable, ठीक है, no problem. Any gain on disposal of the machine will be taxable and any loss is disposable will be deducted for tax purpose. For accounting purpose, the machine has been depreciated by rupees 200. Okay, no problem. Calculate temporary difference. तो 1000 का मशीन है, 200 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, यानी कैरिंग वैल्यू कितनी हुई? 800। तो फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 800। करेक्ट। फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट कितना है? 1000 में से 300 आपने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया था, 700। तो नेट डिफरेंस कितना आ रहा है? 100 का। करेक्ट। सो टैक्स बेस इज 100, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस इज 100। क्यों? फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 800 और फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट कितना है? 700। करेक्ट। तो टैक्स बेस भी वही बन रही है, यानी 100 रुपए का आपका टेम्पररी डिफरेंस आ रहा है। ओके, इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1000, ठीक है, नो प्रॉब्लम। द रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस। कैलकुलेट टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस कर देंगे, उसमें क्या है? कैरिंग वैल्यू कितनी है? 1000, तो फ्यूचर टैक्स भी उसी पे लगने वाला है। एक्सक्यूज मी, अपने वीडियोस अनएडिटेड होते हैं तो ये भी चीजें उसी में आने वाली है। फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट कितना है? नील, को क्यों दिया ही नहीं है, तो टैक्स बेस इज नील, क्योंकि 1 - 2 + 3। ओके, फॉर्मूला बताया था मैंने। टेम्पररी डिफरेंस कुछ आएगा ही नहीं, 1000 रुपया 1000 ही रहेगा, कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं ना। करेक्ट। ट्रेड रिसीवेबल हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1000, द रिलेटेड रेवेन्यू हैज बीन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल प्रॉफिट। कैलकुलेट टेम्पररी डिफरेंस, सेम रहेगा। 1000 रुपया कैरिंग वैल्यू है, फ्यूचर टैक्सेबल इनकम नील है, फ्यूचर डिडक्टेबल इनकम नील है, तो टैक्स बेस 1000 ही रहेगा, टेम्पररी डिफरेंस कुछ नहीं है। करेक्ट। देखो पीछे वाले सब में और इसमें डिफरेंस क्या था? वहां पे आपको दिया हुआ था, फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट दिया था, और यहाँ पे कुछ नहीं, देन कैरिंग अमाउंट ही दिया है। डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम द सब्सिडियरी कंपनी हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1000। ओके, नो प्रॉब्लम, डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल, है ना। एंटायर कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट इज डिडक्टेबल अगेंस्ट द इकोनॉमिक बेनिफिट, तो फ्यूचर टैक्सेबल इनकम तो कुछ नहीं है, नील बन जाएगी। कैलकुलेट द टेम्पररी डिफरेंस। 1000 रुपया आपका कैरिंग अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट कुछ नहीं है, तो फ्यूचर टैक्स डिडक्टेबल इनकम भी कुछ नहीं बनेगी, टैक्स बेस 1000 है, डिफरेंस कुछ नहीं। देन so reading the question carefully will help you to understand things better. Loan receivable has a carrying amount of 1000. The repayment of loan will have no tax consequences. Okay, तो रिपे अगर करती भी है तो भी टैक्स के ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, यानी 1000 ही बनेगा बेस। कैरिंग वैल्यू 1000, फ्यूचर टैक्सेबल नील, फ्यूचर डिडक्टेबल नील, टैक्स बेस 1000, टेम्पररी डिफरेंस 1000। ठीक है,
I hope you're understanding. Inventory at the balance sheet date has carrying value of 10,000. Okay. The inventory will be deductible for tax purpose when sold. Okay. The amount that will be deductible for tax purpose for the inventory will be 10,000. तो 10 में से 10 चला गया, क्या बचा एंड में? nil, which becomes the tax base. Calculate temporary difference, कुछ आएगा ही नहीं. कैरिंग अमाउंट 10,000 है, टैक्सेबल अमाउंट टैक्स बेस भी 10,000 है, फ्यूचर डिडक्टिबल अमाउंट 10,000, तो टैक्स बेस 10,000 उन्होंने दिया हुआ है. टेम्पररी डिफरेंस कच्छू ना ही, निल इल्ला. आई होप दिस वॉज क्लियर. यस, ईजी है. यस, चीज़ें ईजी है, बस हाँ टाइम देना पड़ेगा. बहुत लेंदी है ये सब्जेक्ट, मुझे भी बाद में पता चला, पहले पता तो बताता ही नहीं, मतलब बनाता ही नहीं वीडियो. पण ठीक आहे, अभी क्या आहे, पाणी में कूद गए तो तैरना तो पडेगा. मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही. बघून घेतो म्हटलं IFRS पण स्वर्ग कसा आहे. ठीक है, स्टडी वेल. एग्जाम्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जब तक आप ये वीडियो देखोगे शुरू हो गई होगी, क्योंकि आज है 21 मई और 22 मई से आपके एग्जाम शुरू हो रहे. तो आज तो आप AFM में बिजी हो. AFM वाली वीडियो में घाई गड़बड़ में मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था, तो बिना मेरा मुंह दिखे आप लोग पढ़ाई करना.